कैसे हैं आप लोग? नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर टूडेज क्लास, रिवीजन क्लास 2 related with the chapter 1 from history, French Revolution. In last session you have learned that about the French society during the 18th century, and also you have learned that how the French society was, the structure of the French society you have learned in the last class. How the king of France, that is Louis XVI, become king of France, and at that time the treasury was empty. You have learned the causes of why the treasury empty at that time. After that you have learned the structure of the society. First stage, second stage, third stage, that is clergy persons and the noble persons, and the third stage belongs so many 98% populations of the France, that is peasants, administrative, some workers, households, lawyers, businessmen, all of this. Also you have learned about the struggle to survive. You have learned that how the substance crisis arrived, what are the problems of the people in the French society. So now, these are the reasons why the event happened. So the event happened 14th July 1789. We have learned all the reasons. Now today we learn about the outbreak of the revolution. What was the event when you learn starting, that is the event for destroy the Bastille Fort. तो इवेंट स्टार्ट क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे वो आपने देख लिया, स्टार्टिंग क्या थी और स्ट्रक्चर अभी आपने समझ लिया. अब आउटब्रेक देखते हैं कि वो इवेंट का स्टार्टअप किस पॉइंट से हुआ. आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन. इन द ओल्ड रेजिम, monarchy system have no power to increase the taxes. In old regime, what's the old regime? Old regime called for the old system before 1789. Before 1789 का जो सिस्टम था, इट मीन्स लुईस 16 के पहले के जो किंगडम सिस्टम था, दैट इज कॉल्ड ओल्ड regime. In the old regime, the rules is that without discussion in the Estates General, king had no power to increase taxes. So the Louis XVI decided that to call the meeting of third state. जनरल स्टेट्स की मीटिंग बुलाने का पावर सिर्फ और सिर्फ मोनार्क सिस्टम को ही था. इट मींस किंग ही जो है वो मीटिंग अरेंज कर सकता था, मीटिंग बुला सकता था. द फर्स्ट, इसके पहले जो मीटिंग हुई थी, द हेल्ड इन 1614. Meeting was last held in 1614. Last meeting कब हुई थी बेटा? 1614. उसके बाद ये मीटिंग अब हो गई. So now
Louis XVI called the assembly meeting on 5th May of 1789. 5th May of 1789 मीटिंग बुलाई थी. All the members of first state and second state मीन्स क्लैर्जी एंड नोबल पर्सन्स को इनको कॉल किया गया. बोलो भाई. एंड अबाउट 300 persons from the first state, 300 peoples around from the second state, and from third state 600 members came in that meeting. That meeting, overall persons attended. In the first stage and second stage, all the representatives are already from feudal powers and rich families. But in the third stage, these 600 representatives comes from the background of the businessmen, lawyers, educated persons. Okay, ये लोग यहाँ पर आए. And they came with some 40,000 letters. People said the problem, so the letters will bring in the brought in the assembly. In this meeting, women and peasants are not allowed. Peasants और women को मीटिंग में, असेंबली मीटिंग में अलाउ नहीं था. Now the meeting was started, and the proposal was came in front of the people, and the decision was having taken on the previous system, that is one estate, one vote. But from the representatives of the third state demanded that the voting was on the assembly as a whole. जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव्स की बेसिस पर वोटिंग होना चाहिए. ऑल द मेंबर्स आर 12 members. So they tells that उन्होंने बोला कि भाई 1200 पीपल्स हैं, इनके बेसिस पर ही वोटिंग हो. बट द किंग लुई 16 was not agree for that. The idea of the third stage came from the ideology of Rousseau, that is one person one vote. ये आइडियोलॉजी यहाँ से आई. अब किंग मानने वाला नहीं था, तो यही था कि फर्स्ट वोट जो है, फर्स्ट स्टेज की वन वोट एंड सेकेंड स्टेट की वन वोट, देन दीज आर ओनली 3 वोट्स. अब 3 वोट्स में होगा क्या? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के जो लोग होंगे वो वन ग्रुप में रहते थे. थर्ड स्टेट के लोगों को वोट जो है टैक्सेस देना पड़ते थे. दैट्स द प्रॉब्लम. सो द थर्ड स्टेट
प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, विरोध किया इस चीज का, और जब किंग नहीं माने ये वॉकआउट हो गए, वहां से बाहर आ गए। एंड इन 20 जून द प्लेस वेयर दे assembled, that is indoor tennis ground. What's the name? Indoor tennis ground. याद रखिएगा। And what was the ideology behind it? One person one vote starts. The ideology came from the idea of the Rousseau, from his thesis, that is social contract. Okay? ये वर्ड आपको याद रखना। आगे देखिएगा, when they all declared themselves a constituent assembly, national assembly, and after they decided that they were made a constitution for the country, so the king also under the constitution and reduce the power of the king, वो किंग की पावर को रिड्यूस करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसलिए वो स्टार्टअप हुए एक बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। यहां तक तो ठीक ही चल रहा है, बट आगे क्या होगा? इन द वास्ताय अदर कंट्रीज साइड सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। आपको पता है प्राइजेस आर रोज, substance crisis there, so many problems of the peoples. हाँ, एक और बात, when the constitution started, the representatives of third state, these 600 peoples, led by two peoples. Name of the peoples are Mira, Biu, and Abi, Shie. These two peoples lead them for the peoples, the representatives of the third state. They two peoples refuse the feudal system because the Meravi comes from the noble family and Avesius was a priest. Priest means related with the clergy persons. So from the people that is related with the first state and that is related with the second state. ये दोनों ही पीपल जो है इनको लीड कर रहे थे। These are very great leaders. The speeches of the Meravi was very powerful, and Avesius also write some pamphlets. What was the estate? इस तरह से उन्होंने कुछ बातें लिखी, नोट की, और the peoples were influenced from their views. Okay? And the situation, you have seen that when the peoples entered the Bastille fort, they destroyed the fort, demolished it. All the fragments are sold in the market because the fort of Bastille
was the sign of dominating power of the king. वो उससे घृणा करते थे, hated for that system. तो वो उन्होंने उसकी ईंट सिंक गिरा दी. ओके. Now the king not able to control the situations. उधर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इधर पीपल फोर्ट को ही तोड़ दिए, कंट्री साइड में सिचुएशन बिगड़ी हुई थी. पीपल्स एंटर्ड द वास्ताइल फोर्ट. पीजेंट्स looted the grains, burned the papers or records of the land. Large number of noble persons moved to neighboring countries. भाग खड़े हुए. अब तो राजा परेशान हो गया. So the king accepted the constitution. तो राजा ने बोला कि चलो भाई, अब हम आपकी बात मान लेते हैं. और उन्होंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, नेशनल असेंबली की जो बातें थी, उसको मान लिया. आफ्टर द रिकॉग्नाइज फॉर द नेशनल असेंबली ऑन 4th August 1789, the National Assembly passed a decree. In that law, France abolished the feudal system. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्या हुआ इस लॉ के पास होने से 4 अगस्त 1789 को. abolish the feudal system. पहले तो feudal system ही abolish हुआ, उसको हटा दिया गया. कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, नोबल का बेटा नोबल नहीं होगा, प्राइस का बेटा प्राइस नहीं होगा, है ना. जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर सिस्टम बनाया. Second, abolish the taxes. टैक्सेस से छूट दे देंगे. थर्ड एस्टेट के लोग थे, वो लोग टैक्स नहीं देंगे. देंगे तो सभी देंगे, नहीं अभी तो टैक्सेस बंद कर दिए. एंड इस डिग्री से जो नोबल थे, नोबल फैमिलीज एंड क्लैरिटी, खासतौर से ये क्लैरिटी, इन लोगों को फोर्स किया गया टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, कि वो अपने प्रिविलेज जो सिस्टम था उसको गिव अप कर दें, खत्म कर दें. टाइप एबोलिश, टाइप को भी एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. तो टाइप टैक्स था, वो टैक्स भी खत्म हो गया. और क्या हुआ, ये पॉइंट्स आप इस तरह से अलग अलग दे सकते हैं. लैंड owned by church were seized
सेंट्रलाइज्ड मीन्स उसको कंट्रोल में ले लिया गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कौन चला रहा था? नेशनल असेंबली। ओके, एंड ओवरऑल है 2 बिलियन यूरोस, 2 बिलियन यूरोस उनके पास आ गए इस सब काम करने से। एंड द फ्रांस बिकम a constitutional monarchy. What is constitutional monarchy? It means constitution also there and king also there. राजा भी था, monarchy system भी था, but the government is controlled by the constitution. King also controlled by the constitution. Okay, so the France become a constitutional monarchy. In 1791, the National Assembly completed his constitution. तो आपने देखा कि इन 1791 नेशनल असेंबली completed the constitution. The main objective of that constitution to control the power or reduce the power of the monarchs. इस कॉन्स्टिट्यूशन का ये रूल था, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो राजा है उसकी शक्तियों को कम करना है। उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इस कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स वर सेग्रीगेटेड, अलग अलग कर दिए गए थे। सम इंस्टीट्यूशंस वर इंट्रोड्यूस्ड, कुछ इंस्टीट्यूशन सामने आए, जैसा कि आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में। मॉन्टेस्क्यू सजेस्टेड दैट द पावर्स वर reduced and distributed some institutions, in some institutions that are judicial system, executives and legislature. See in the diagram. Now students, see here in this diagram, when National Assembly completed the draft of the constitution in 1791, after that the main objectives was to limit the power of the monarchs. Now the power were separated and assigned to different institutions. जैसा कि आपने भी देखा, the institutions are legislature, executive and judiciary system. This change of powers made France
अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इस पावर्स के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया, जैसा कि अभी आपने देखा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनने के बाद इसका अर्थ आपने समझा कि गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी। इट मीन्स जो किंग है वो सेपरेटली अपने पावर्स का फुल इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अंडर द लॉ ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ वर टू बी मेड बाय द नेशनल असेंबली। इसके तहत नियम ये था बेटा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे वो किसके द्वारा बनते थे? नेशनल असेंबली के द्वारा बनते थे। द असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो असेंबली थी दिस वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग इनडायरेक्टली इलेक्टेड? बिकॉज पीपल्स आर सेपरेटेड इन टू ग्रुप्स, दीज आर द एक्टिव एंड पैसिव ग्रुप्स। अभी बताएंगे। तो इस हिसाब से जो पीपल्स आर सेग्रीगेटेड एंड दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड द नेशनल असेंबली, दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। ओके, इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी। अब इनडायरेक्टली कैसे इलेक्ट होती थी वो देखिए आप। सिटीजन्स वर सेग्रीगेटेड इन एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। Who are the active and who are the passive citizens? Active citizens voted for the group of electors। जो active citizens होते थे वो electors को elect करते थे। बट ये थे कौन? तो देखिए यहाँ पर the men who were above 25 years old, जो 25 साल से ऊपर के हुआ करते थे years old, and who paid taxes equals to the least 3 days of a laborer's wages were given the status of active citizens। जो व्यक्ति 25 साल के ऊपर के थे और जो 3 दिन के वेजेस के बराबर, अपने मजदूरी के बराबर टैक्स पे किया करते थे, उनको ही एक्टिव सिटीजन के तहत मान्यता प्राप्त थी। वही इलेक्टेड वोटर्स थे, वही इलेक्ट कर सकते थे इलेक्टर्स को। अबाउट 4 मिलियन आउट ऑफ 23 मिलियन पॉपुलेशन, सोच सकते हैं आप 28 मिलियन पॉपुलेशन में से 4 मिलियन लोग ही सिर्फ क्या करते थे? इलेक्टर्स को इलेक्ट किया करते थे बेटा। इलेक्टर्स कितने हुआ करते थे? 50,000 मैन पर्सन। बिकॉज ऑफ बाकी के जो बचे हुए पर्सन थे, इट मीन्स 24 मिलियन लोग वो पैसिव सिटीजन्स में थे। तो निश्चित है आगे चल के इसका भी विरोध होगा, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये नॉन वोटिंग ग्रुप में आते थे, इनको नॉन वोटिंग राइट्स थे, इनको वोटिंग राइट्स नहीं थे ना। जिसमें 3 मिलियन मैन, वेमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स के लोग थे। ये लोग जो है वोट नहीं दे सकते थे। आ रही बात समझ में ना? ये स्थिति बनी हुई थी। तो इनको जो है एक्टिव सिटीजन्स में शामिल नहीं किया गया था। अब नेशनल असेंबली जो इलेक्ट होती थी, द नेशनल असेंबली इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टर्स। In this system, to qualify as an elector and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers। अब इलेक्टर्स में भी एक बात का ध्यान रखना है कि इलेक्टर्स होने के लिए भी टैक्स पेयर बनना पड़ेगा, और इलेक्टर्स के बाद जो हायर टैक्स पेयर्स थे वो ये लोग उनको ही जिताते थे और जीत करके वो नेशनल असेंबली में जाते थे। तो मतलब वही कि पैसे का कमाल हुआ ये तो, है ना। जो सिस्टम बना तो स्टार्टअप तो हुआ डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट ये थोड़ा सा चेंजेस था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट हुआ उस समय का, वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड वेमेन, मतलब महिला और पुरुषों को जो राइट्स, जो अधिकार दिए गए, उसके डिक्लेरेशन के तहत
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्टअप हुआ, लागू किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन द राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम, कौन कौन सी चीज़ें मिली, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ठीक है ना। द डिक्लेरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द डिक्लेरेशन? फर्स्ट क्या क्या मिला इससे? राइट टू लाइफ, क्या मिला? राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। सेकंड मतलब बिना किसी कारण के कोई किसी को नहीं मार सकता। फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच। और क्या मिला? फ्रीडम टू ओपिनियन, फ्रीडम टू ओपिनियन, ओपिनियन देने का अधिकार मिला। और इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ओके, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये सब राइट्स स्टेब्लिश हुए। एंड द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज दैट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। एंड इन दिस सिस्टम किंग इज कंट्रोल्ड बाय द नेशनल असेंबली एंड नेशनल असेंबली ऑल्सो कंट्रोल्स द मिनिस्टर्स। ये एक दूसरे को जो है वो कंट्रोल किया करते थे, किंग इनसे और ये किंग से, है ना। और ये सब मिल करके फिर किसको कंट्रोल करते थे? मिनिस्टर्स को, जो गवर्नमेंट जो काम करती थी। तो ये निर्णय इन्फ्लुएंस किया करते थे। एंड ज्यूडिशरी सिस्टम ऑल्सो देयर बट इट इज़ इंडिपेंडेंट। अलग जो एक्टिव वोटर्स थे, है ना, अलग से ये वोट दिया करते थे एंड जजेस को इलेक्ट किया करते थे। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दिस इज द सिस्टम ऑफ द लॉ मेड बाय द नेशनल असेंबली। आगे हम देखते हैं। अब आगे देखिए, सम ईयर्स आफ्टर ऐसा पता चला कि द किंग ऑफ फ्रांस लुई 16 हैव अ सीक्रेट मिशन। क्या सीक्रेट मिशन था? सम सीक्रेट नेगोशिएशंस फ्रॉम द किंग ऑफ क्रोशिया। He have also got the support of Austria also, because of at that time भले ही किंग ने साइन कर दिया था, साइन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन की ये सब होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन वो ये कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि ऑल द किंग्स अराउंड देयर, जो आसपास और राजा थे, दे were not like the situation that happened in the France. उनको लग रहा था कि जैसा फ्रांस में हुआ ऐसा करके हमारे देश में भी ना हो जाए, हमारे राज्य में भी ऐसा ना हो। So they all together मिल करके एक योजना बना रहे थे, सीक्रेट मिशन, एक योजना बना रहे थे। The mission was they have अटैक ऑन द फ्रांस। वो ऐसा कर रहे थे कि वो फ्रांस पर अटैक करेंगे, नेशनल असेंबली को डिफेंड करेंगे, और वो जैसे ही अटैक में नेशनल असेंबली को हरा करके और फिर बाद में राजा को फिर से जो है थ्रोन पर जैसे पावर में था वैसे पावर में आ जाएगा। ये पूरी प्लानिंग बनी हुई। बट दिस सीक्रेट नेगोशिएशंस और इस मिशन की जानकारी किसको लग गई? नेशनल असेंबली को लग गई। अब क्या होगा? नेशनल असेंबली डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट द प्रूसिया एंड द ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया के अगेंस्ट उसने वॉर शुरू कर दिया। अप्रैल
प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। अब देखिए कहानी आगे बढ़ रही है। रेवोल्यूशन 1789 का है, 14 जुलाई। ये तो हम देख चुके कि क्या हुआ, लेकिन उसके बाद क्या सिचुएशन हुई फ्रांस की, वो हम आगे देख रहे हैं। अप्रैल 1792 में the government of France attacked on the Prussia and the Austria, और उसमें वो जीत जाते हैं। जीतने का सबसे बड़ा कारण था, इन दिस वॉर so many people participated because of the people's protest against the monarchy system or kingdom system। उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो पहले सिस्टम चला रहा था वो नहीं चाहिए। So all the people around there participate in the war, and when they participated, they sang a song, patriotic song, कुछ राष्ट्रभक्ति के गीत गाते थे। एक गाना जो गाया गया वो वहां का राष्ट्रगीत बना, नेशनल एंथम बना। After the war, the Marseillaise were the national anthem of the France। उसके बाद वो नेशनल एंथम बन गया। Who wrote this? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, Who wrote the national anthem Marseillaise? The name Rosette D. Slade। So the Marseillaise become national anthem of the France, and the whole story, France become a republic।